Hello students. So my channel Clear Your Doubt is for JEE and NEET students. It is going to help you in your preparation journey. If you are a JEE student and you have a doubt, you cannot solve a question, you can take a screenshot or take a picture and send it to me through my Telegram channel or in the comment of any of my videos. I will help you out with a clear explanation through my videos in a very easy to understand manner. If you are a new student, you can ask your doubt or question from physics only. I will help you out in a similar fashion. Okay. So for example, this question was asked by one of my students. So let's start this question. This question is based on constrained motion on an inclined plane, right? So a block A and wedge B connected through a string as shown. So this is the block A and this is the wedge B. They are connected through this arrangement with the help of a string. You can fast forward, like you can watch the video at 2x or 1.5x as you are comfortable. This is a good question, so I'm going to explain it little slow so that everyone can understand. तो आगे बढ़ते हैं. The wedge B is moving away from the wall with the acceleration 2 meter per second square. जो ये wedge B है, it is moving away from the wall. तो ये माइनस आई डायरेक्शन में है, तो आपको ये इंट्यूशन से कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा. ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. 2 meter per second square. All right. Now horizontally, actually it is given horizontally, sorry I misread, so it is horizontal, so minus I. And acceleration of block A, I'm sorry, yeah, acceleration of block A is vertically upwards, right? So block A is going in vertically upward direction, so sorry, so still there is a chance I can't make it vertically. Okay, so this is vertical, some acceleration, let's call it acceleration of A, and this is acceleration of B. One thing is very sure, so acceleration of A is given to you in vertical direction. What is asked here? Then ऑप्शन पढ़ लेते हैं. एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव एक्सलेशन पूछा है. ऑल राइट. एंड जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है वैसे रिलेटिव एक्सलेशन होता है. ऑल राइट. सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट एक्सलेशन ऑफ ए and there is one different option, that is theta, so maybe you can find out theta as well. यहाँ पे एक चीज बताओ आप, you do you see anywhere mass of any block given? किसी ब्लॉक ए या वेज किसी का मास गिवन है? नहीं ना. कहीं पे फोर्स पूछा है, मास गिवन नहीं है, तो फोर्स पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो कैसे, हाउ डू यू नो कि कंस्ट्रेंट वाला प्रिंसिपल लगाना है या अप्रोच लगाना है? कंस्ट्रेंट वाले अप्रोच में पता है, यू नो व्हाट यू डू, राइट? आप कोई स्ट्रिंग रहती है, वो कई सारे फिक्स्ड पोजीशन से पास होते हुए कुछ वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, उसका जो सम होती है, स्ट्रिंग का लेंथ इनफ्लेक्सिबल होता है फॉर योर केस. तो स्ट्रिंग की लेंथ हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो जाता है. दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो चेंज इन लेंथ, सॉरी वही डबल हो गया ना, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? सो वी कोरिलेटेड विद एक्सीलरेशन. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू नो मास इज नॉट गिवन. तो आप क्या करोगे, कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म लगाओगे. यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन, राइट? और कोई ऑप्शन इसमें बचा नहीं होता है. तो आपको स्ट्रिंग दिख ही रही है, इसको यहाँ से यहाँ तक मान लो L1, इसको मान लो L2, इसको मान लो L3, इसको मान लो L4. ऑलराइट. नाउ इवन बिफोर दैट आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये वेज हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड्स जा रही है, माइनस आई डायरेक्शन में जा रही है. अगर आपका ये x हो गया और ये y हो गया,
तो इस एक्सलेशन का कुछ कंपोनेंट होगा जो ए ब्लॉक ए को इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड्स की डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, राइट। इसका एक कंपोनेंट होगा, राइट, ये इंक्लाइन प्लेन की तरफ और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल क्या होगा, आप देख लेना ज्योमेट्री बना के, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। तो जो जो ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू टेक इट इन this is going to take block A in upward direction. Of course उसका opposite relative velocity contact की वजह से जो A का इस पे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ए बी cos थीटा, ठीक है। इस एक्सलेशन से A अपवर्ड जाएगा। और आपको पता है कि सॉरी, लेट मी मेक इट विद अनदर कलर। ये गिवन है, ये इधर आया और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। आप इसको देख लेना कैसे, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे ऊपर बढ़ा लेना, इधर बढ़ा लेना, दोनों तरफ बढ़ा लेना, ये ऊपर, ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। सो सिमिलरली ये थीटा। तो ए जो एक्सप्रेशन है ब्लॉक ए का, ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए sin theta, right? Or AB cos theta is also going to act on this. Uh, okay, yeah, this block A, right? All right. Now, आप एक बात बताओ, जो ए cos theta है, इंक्लाइन प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर देखो, ए cos theta, ये किस किस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा? इट इज गोइंग टू बैलेंस जो ए बी, आपने ए बी एक्सलेशन को ऐसे दिया है ना, राइट, इधर ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन की तरफ आ रहा है तो इधर ए बी साइन थीटा भी आएगा। बेसिकली आपने किया क्या है, वेज के एक्सलेशन ए बी के इक्विवेलेंट एक एक्सलेशन ए ब्लॉक ए को भी दिया है, ठीक है। तो ए बी का क्या आ गया, ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ है ना, ए बी साइन थीटा, आप फिर से समझ लो, ए बी का सिमिलर कंपोनेंट ब्लॉक ए को दिया है और उसका इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड्स की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ए बी कॉस थीटा जा रहा है और डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी साइन थीटा आ रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला है ना, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इसलिए रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ए बी इसको इधर दिया और उसके जस्ट अपोजिट ब्लॉक ए में चला जाएगा, राइट। ए बी साइन थीटा इज गोइंग टू बैलेंस ए कॉस थीटा, ठीक है, राइट। AB is given to you, that is 2, that is 2 sin theta is equal to AA cos theta। यहाँ से AA की वैल्यू कितना आएगी, आ गई एक्सेलरेशन ऑफ A 2 tan theta, राइट। we will need this, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ लेंथ कंस्ट्रेंट वाले मैकेनिज्म पे आते हैं। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज कांस्टेंट। स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चेंज होने जा रही है, राइट। यहाँ पे बस आपको मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा एक बार, ए बी जो, यही यही समझने वाली बात थी कि जो एक्सलेशन ऑफ बी है ना, वही तो ब्लॉक ए को ऊपर ले जाएगा। पूरे मैकेनिज्म में ए पे कहीं एक्सलेशन दिया है क्या, नहीं, राइट। तो ए का जो ए का जो मोशन हो रहा है, इट इज ऑल्सो हैपनिंग, इट इज हैपनिंग ड्यू टू द मोशन इन वेज बी, तभी उसके जस्ट अपोजिट एक्सलेशन आप ए को दे रहे हो, जैसे रिलेटिव एक्सलेशन होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ
वी कैन डिफ्रेंशिएट इट ट्वाइस, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ डी टू एल वन अपॉन टाइम के हिसाब से डी टू टी स्क्वायर प्लस डी टू एल टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी टू एल थ्री अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू एल फोर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऑफ कोर्स। टेल मी वन थिंग, L2 की लेंथ कभी चेंज हो रही है क्या यहाँ पे, ये वाला पोर्शन? दीज आर फिक्स्ड पुलीज, पुली के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो L2 की भी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, सो दिस गोज अवे एंड D2 L1 अपॉन dt स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, L1 की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। इफ L1 इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग विद सर्टेन रेट, वही रेट हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, 2, right, 2 is given plus this already gone, L3 की भी उसी rate से बढ़ रही है length, L3 is increasing with the same rate and we are going to put 2, right, plus what is D2 L4 upon dt square, L4 की length is reducing, घट रही है, तो यहाँ पे there are two rates of decrement, one is this acceleration of A itself and another is relative acceleration of B, ठीक है, so relative acceleration of B, and since length L4 is decreasing we are going to use minus sign and that is going to be what, AA sin theta and minus AB cos theta is equal to 0, alright, so यहाँ से AA sin theta is equal to 4 minus 2 cos theta, AA is given, हमने पहले ही निकाला था, A in terms of tan theta, AA is 2 tan theta, tan theta को हम लिख सकते हैं sin theta upon cos theta into sin theta is equal to 4 minus 2 cos theta, ठीक है, sin square theta is equal to 2 sin square theta is equal to 4 cos theta minus 2 cos square theta, this comes on this side and sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो I'm going to write directly 2 is equal to 4 cos theta, theta is equal to cos inverse half, और cos किस एंगल का हाफ होता है, 60 डिग्री, right, so one option you have got correctly, that is theta is 60 degree, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन लगता है, चेक करते हैं और कोई, एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा tan 60, राइट, आ जाएगा 2√3, ये भी सही है, डी वाला भी। नाउ रिलेटिव एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन ए रिलेटिव कैसे, जिसके विद रिस्पेक्ट टू होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट, एक्सेलेरेशन ऑफ ए वेक्टर में हम लिखते हैं, आसानी होगी समझने में, ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर कितना है, टेल मी, 2√3 जे कैप, राइट, माइनस 2 आई कैप, राइट, कितना आ जाएगा 2√3 जे कैप प्लस 2 आई कैप, राइट, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए रिलेटिव वेक्टर मॉड ऑफ दिस कितना आ जाएगा, 4 3 12 प्लस 4 का रूट स्क्वायर रूट दैट इज 16 का रूट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसे ही इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, and you have any doubt at any point of time, just take the screenshot or write into comment section,
and share the video among your friends and have a great learning. All the best. Thank you so much.